Hello and welcome to yet another interesting and entertaining episode of Ek Mulaqat. You're with me, Florence Handik Rabha, and today our special guest is a young artist from the world of theatre in Assam. She has already worked and acted in more than 20 plays and has performed in various prestigious drama events and festivals all over the country as well as abroad. Well, we'll be meeting this young talent from Guwahati very soon in this very show. But before that, I would like to show you a small audio visual on her. Have a look. প্ৰতিটো মুহূৰ্তত হলনি হৈছে মানুহৰ মুখৰ ৰং দেহৰ অভিব্যক্তি মই শূন্য হৈ গলো দেউতা The young stage prodigy from Guwahati, Kismat Bano, has already acted in more than 20 plays in different languages, including Assamese and Hindi. Her plays have been staged in major cities of the country and abroad. A graduate from Handik Girls College, Kismat Bano joined Seagull Theatre in Guwahati under the patronage of Bhagirathi and Baharul Islam right after completing her higher secondary. Thereafter, Kismat Bano established her own theatre troupe called Wings Theatre in Guwahati in her residence. The main activities of Wings are using theatre in education of children, working for spastic girls in association with Sishu Sarothi, India, conducting theatre performance-oriented workshops for orphans and indigenous girls in rural areas, and working with differently abled students of Guwahati Blind High School and promoting theatre among them. Two of her recent plays staged in Guwahati, Helen and Bano, not only received appreciation from the theatre-loving crowd of the city, but also earned critical approval from the press. Kismat Bano has been a recipient of scholarship from the Ministry of Culture, Government of India. She has also received the Young Talents Artist Award for 2016 and 2017 from Shri P.D. Acharya, Honorable Governor of Arunachal Pradesh. Well, dear viewers, I'm sure you enjoyed the audio visual. Well, I'm very happy to share with you that right now I have with me the very beautiful and talented drama enthusiast, Kismat Bano with me. Hi Kismat, welcome to our show. Thank you ma'am. Well, आप बहुत प्यारी लग रही हैं इस गाउन में. मैम आपसे कम आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं. Thank you so much for giving your time, Kismat, and we are very proud of you जिस तरह का आप काम कर रही हैं. You know, मुझे आपका नाम बहुत प्यारा लगता है. ये नाम आपको किसने दिया, किस्मत? मैम ये नाम सच में मैं जब स्कूल में थी मुझे भी पहले बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन अभी मुझे भी मेरे नाम से प्यार हो गया. तो ये नाम मेरे पापा ने दिया था, मेरे दादाजी ने दिया था. So sweet. All right. So किस्मत माने destiny, right? Yes. So according to you, destiny जो है किस्मत हम खुद बनाते हैं या ये पहले से ही तय होता है? नहीं मैम, हम खुद बनाते ये destiny. Really? Yeah. That's a brave and hardworking Kismat Bano speaking to us, right? Well done, Kismat. Well, अब हम आपके काम के बारे में अगर बात करें, तो जो सबसे पहला प्ले हेलन आपने लिखा, आपने डायरेक्ट किया, वो फेमस ऑथर, अमेरिकन ऑथर हेलन केलर पर आधारित है और शी वॉज ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट. और बातों ही बातों में आपने मेरे को एक बार कहा था, मुझे याद है कि you somehow relate yourself to her. That was a situation, a point in your life, a phase in your life. So what was the situation, और आपको क्या ज़रूरत पड़ी which you know kind of forced you to write this play and stage it for the audience? What is the message that you wanted to tell your audience? Okay ma'am. Ma'am, Helen is my first play as a director and obviously as a playwright also, and before that I didn't had idea about direction and writing stories. So like you asked me what is the similarity between Helen and my own personal character. So like I belong to an orthodox family, and right now girls of my age, they get married very soon at very young age.
सो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब मैं मेरी TDC सेकेंड ईयर में थी, तो मेरे जो मेरी आंटीज़ है उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़की बड़ी हो गई है तो आके देख लो। तो मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स दे वांट गुड फ्यूचर ऑफ देयर डॉटर। सो मेरे पेरेंट्स और हम सब राजस्थान गए, वहाँ पे उन सब से बातचीत की और वहाँ पे फिर वो लड़की देखने आते हैं। तो वहाँ की मेरी आंटीज़ और कुछ है, उन्होंने मुझे मेकअप वेकअप सब कुछ कर दिया, एकदम एक डॉल की तरह। यस, मुझे पूरा डेकोरेट कर दिया, सजा दिया और मुझे बोल दिया तुम जाना, तुमको जो भी वो कुछ कहेंगे जस्ट डू अकॉर्डिंग व्हाट दे विल से। तो आई सेड ओके। तो जब मैं वहाँ गई, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारे मेल मेंबर थे, वो सब मुझे स्टेयर्स कर रहे थे, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे कह रहे थे तुम खड़ी होके दिखाओ, तुम चल के दिखाओ, हंस के दिखाओ, वी वांट टू सी योर हाइट, वी वांट टू सी दैट यू हैव फुल टीथ और नॉट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। So insulting. या सो यू नो एट दैट टाइम यू नो आई वांटेड टू स्पीक आउट, बिकॉज मैंने तब थिएटर शुरू कर दिया था और मुझे रिवॉल्व करना था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज बड़े बुजुर्ग बैठे थे। Yes. और ये रिवाज नहीं है जी, उनके सामने बोलना या उनके ऑपोजिट कुछ कहना। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उस समय मैं यू नो आई हैव वर्ड्स बट मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने अपने हेलन बोल नहीं सकती थी, तो उस समय मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी मैं बोल नहीं पा रही थी, और जो वो सब क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे, मुझे वो सुनना नहीं था, और जो कुछ भी हो रहा था मेरी आंख के सामने मुझे वो देखना नहीं था। तो ये तीन चीज़ें यू नो हेलन के पास, जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती, ये तीनों चीज़ें मैंने उस समय फील की। तो इसीलिए जब मैंने हेलन प्ले पढ़ा तो मुझे लगा ये कैरेक्टर बहुत सिमिलर है, और हेलन की अपनी स्ट्रगल थी, मेरी अपनी स्ट्रगल है, तो इस वजह से मैंने ये प्ले किया और हेलन को मैं खुद के सिमिलर थोड़ा सोचती हूँ। तुम अपने अंदर की आवाज़ को एक्सप्रेस कर सकी थ्रू थिएटर, थ्रू ड्रामा। वेल डन किस्मत। वेल, मैंने वो प्ले समहाउ मिस किया, आपने मुझे कई बार बुलाया उस प्ले को देखने के लिए, लेकिन मैंने आपका नेक्स्ट प्ले बानो में आपका देखने गई थी और मुझे वो प्ले बहुत अच्छा लगा। यू हैव डन वंडरफुल, एक्सीलेंट वर्क इन दैट। और कहीं आपने लिखा है कि वो प्ले भी इज बेस्ड ऑन योर ट्रू लाइफ, और जहाँ तक मेरे को याद है उस प्ले में आपने दिखाया है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपोजिशन एंड स्ट्रगल्स यू नो अ वुमन, अ गर्ल हैज टू फेस इन द फैमिली इफ शी वांट्स टू फॉलो हर पैशन, ड्रीम्स इन हर लाइफ। सो ऐसा ही कुछ क्या आपके भी लाइफ में हुआ है? जी बिल्कुल। जब मैंने पहले मैं हैंडी गर्ल्स ऑफ कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ पहले मुझे नाटक के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैंने कॉलेज से वर्कशॉप शुरू किया, मैंने वर्कशॉप अटेंड की ड्रामा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यू नो दिस इज़ समथिंग यू नो विच मेक्स मी हैप्पी। सो मैंने फुल्ली डिसाइड कर लिया मुझे नाटक करना है। फिर लेकिन पेरेंट्स, जब मेरे पापा को मैंने बताया, पापा ने कहा कि ओके डू थिएटर बट डोंट टेक इट एज प्रोफेशनली, कुछ टाइम के लिए इट्स गुड, लेकिन उस समय तक मुझे करना था थिएटर। तो जब मैंने शुरू किया, लाइक आई टोल्ड यू, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, जब हम बाहर शोज़ करने जाते थे, अगर हम बाहर आउट ऑफ आसाम शोज़ करने जाए तो ऑलमोस्ट इट टेक्स 1 वीक टू कम एंड फ्रो। सो वो चीज़ें पापा कभी खुश होते थे, कभी नाराज़ होते थे कि बेटी घर से बाहर गई है, कब तक जाएगी। और एवरी मॉर्निंग में अपना बैग उठा के रेडी होती थी, फादर आज हमारा शो है, यहाँ जाना है। तो कभी पापा खुश होते थे, कभी उनको बुरा लगता था। एंड यू नो वो कहते हैं कि लड़कियाँ लाइक यू नो like my parents, they are original from Rajasthan, so पापा कहते we are not from Assam, so it's not you know you can't do anything, कुछ नहीं कर पाओगी, बहुत talented लोग हैं, बहुत कुछ, ये सब तरह की बातें आती थी। फिर मेरी फैमिली में बहुत जल्दी रिश्ते काइंड ऑफ शादी वादी हो जाती थी, तो ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत बार प्रॉब्लम्स आई है मेरी थिएटर जर्नी में। सो इसीलिए अपनी ओन जो मेरी खुद की ट्रबल्स है, जो मैंने फेस किए, वो सब ही मैंने अपने प्ले बानो में लिखा है। बहुत सुंदर प्ले था, आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें। इनफैक्ट आपके फेलो आर्टिस्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया। वेल डन किस्मत। और फिर आप गुवाहाटी में ही आपने पढ़ाई की है, यहीं पे पली बड़ी हैं। असम में अभी यू आर रेजिडेंट ऑफ असम, असम की हैं अभी आप। तो आप यहाँ ब्लाइंड जो हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं ब्लाइंड स्कूल के, ब्लाइंड गुवाहाटी ब्लाइंड हाई स्कूल के, आपने उनके साथ भी काम किया। सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट यू नो प्ले? That play was Puhor? Yes, ma'am. Yeah, you wrote and staged that play. So आपने उनके साथ काम करने का कैसे सोचा? मैम क्यों सोचा? या ऑनेस्टली बताऊँ, पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था
कि मुझे भी उन बच्चों के साथ काम करना है। मैंने जैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन के पहले मैंने हेलन प्ले किया। जो हेलन का कैरेक्टर मैंने खुद किया था, एक विजुअली इम्पेयर्ड जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, और उसके पहले मैं अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे लोगों से मिली नहीं हूँ जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता। तो मैंने जैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं अपना एडमिशन लेने गई थी फाइन आर्ट्स कॉलेज में, जो बसिस्ता में है। सो वहाँ से गुजरते वक्त बस से मैंने देखा ब्लाइंड स्कूल है, तो फिर मुझे अंदर मुझे लगा कि एक बार मैं जाके आती हूँ, उनसे मिल के आती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्ले किया है उनके ऊपर। तो मैं जब कॉलेज गई, एडमिशन के बारे में पूछा तो एडमिशन इज़ ओवर। सो वो मुझे एडमिशन मेरा हुआ नहीं, वापस आई, मैं ब्लाइंड स्कूल के अंदर गई। ब्लाइंड स्कूल में एंट्री होते ही मैंने हेलन केलर का एक बहुत अच्छा कोट देखा, तो उससे वो ज़्यादा अटैचमेंट आ गया उनके साथ। फिर प्रिंसिपल से मिली, मैंने कहा मैं ऐसा प्ले करती हूँ तो मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि किस्मत, यू वोंट बिलीव, हमें कोई थिएटर जो हमारे बच्चों को सिखा दे, हमारे बच्चों के साथ प्ले करें, हम ऐसे कोई एनी थिएटर आर्टिस्ट हम ढूंढ रहे, बट यू नो ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन वी आर नॉट एबल टू पे, सो यू जस्ट गो एंड मीट द किड्स। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम इनके लिए कुछ करो। बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैं आपको वहाँ मिली जी 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 मैम, बच्चों से एक बार मिलने गई थी। They are really amazing, beautiful yeah, and kids. they are very, you know, dedicated and very, I mean, very much intelligent. ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने उनमें पाया जब आप उनके साथ रिहर्सल्स कर रही थी, आप जब उनको थिएटर सिखा रही थी? मैं रिहर्सल्स, ये मेरे मैम नॉर्मल एक्टर भी नहीं, जो मेरे नॉर्मल खुद के एक्टर आते हैं वो भी टाइम पे नहीं आते, लेकिन उनके वहाँ जैसे मैं जाती हूँ, मेरे आने के पहले सब रेडी रहते हैं प्ले रिहर्सल करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें, उनकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी है। उनको अगर मैं कुछ भी सिखाती हूँ, नेक्स्ट डे अगर मैं अपना डायलॉग चेंज करूँ तो वो मुझे बोल देते कि नहीं किस्मत बा, आपने कल ये कहा था। तो तो ये सब चीज़ें मुझे यू नो एनकरेज किया कि मुझे उन बच्चों के साथ काम करना चाहिए। आप उनके साथ बहुत खुश रहती हैं, मैंने देखा है उनके साथ, आपको गाना गाते हुए देखा है, खेलते देखा है। वेरी नाइस किस्मत, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, करती रहो। और मैं आपको यहीं पर बता दूं कि हमारे साथ वी हैव वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ गुवाहाटी, एंड दे आर वेरी कीन you know to interact with you. So any of you would like to ask any question to Kismat Bano? All right, second row. Yes, you can ask. Hello ma'am, I'm Anandita from Royal Global University. My question for you is, where do you see the theatre in Assam after 10 years from now? Okay. Yeah, hi Anandita. ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, आसाम में बहुत ही यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट है, एक्टर, डायरेक्टर एंड प्ले राइट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिल रहा है। अगर उनको मौका भी मिलता है तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो आ जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन मेन थिंग इज़ फाइनेंस, यू नो। अगर हम कोई प्ले करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम एक्टर को पे करते हैं, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टीज़, देन वी हैव टू पे रेंट ऑफ ऑडिटोरियम विच इज़ वेरी हाई इन आसाम, you know, it's like 40,000 for one day, which is, you know, not possible for young directors to take. But बहुत टैलेंटेड, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स है, पढ़ी हुई है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही है। हमें जो थोड़ी हेल्प मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, बट उसमें भी क्या होता है, दे सिलेक्ट, दे डोंट गिव, आई मीन दे डोंट फंड एवरीबडी। अगर उनको कुछ प्रपोजल अच्छा लगा उनको ही देंगे। सो ऑब्वियसली मैं, अगर फाइनेंशियल कंडीशन, आसाम गवर्नमेंट अगर हमें आके कुछ हेल्प करती है, लाइक यू नो इन कोलकाता मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे आर यंग, कोलकाता गवर्नमेंट दे गिव 50,000 टू एवरी आर्टिस्ट, तो उनसे वो काम करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है आसाम थिएटर का। गुड क्वेश्चन एंड वेल आंसर्ड किस्मत। और यहीं पे यू नो हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक परफॉर्मेंस का। यू नो अपने प्ले बानो या हेलन में से आप अगर कुछ डायलॉग्स हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखा देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ओके मैम, हेलन और बानो। ओके, any powerful dialogue that you have in mind? Well, in Helen there was no dialogue, it was silently mute. Right. So maybe Bano? Yeah. Yes. उसका बानो में एक ये डायलॉग्स मैंने लिखे, और नॉर्मली मैं अपने प्ले के डायलॉग्स लिखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं लिखती हूँ, मैं कम करती हूँ। हाँ,
उसका डायलॉग्स है, वो अपने एक एक्टर है जो अपने आप से बात कर रही है, उसको कहीं ना कहीं आके फील होता है उसने जो डिसीजन लिया था वो गलत था। तो उसके डायलॉग्स हैं, जब अम्मी ने मुझसे पूछा था कि कौन उनसे कितना प्यार करता है, मेरी गलती इतनी ही थी कि उस समय में मेरे दिल में जो भी था मैंने वही कहा कि मैं नाटक करती हूँ, लेकिन उसका नतीजा ये क्यों। दिस इज जस्ट सुपर्ब, एक्सेलेंट, Thank you. एक्सेलेंट किस्मत। आप बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्ले राइट, आप राइटर भी हैं, आप अपने ड्रामा खुद लिखती हैं, प्लेज। सो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे आपके स्कूल एंड कॉलेज लाइफ के बारे में। एज ए स्टूडेंट आप कैसी थी? एज अ स्टूडेंट मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बुरी थी, यू नो। आई यूज टू गेट ओनली पासिंग मार्क्स एंड यू नो मुझे मैथ्स में 100 में से सिर्फ 1 मिलते थे। आई एम वेरी बैड इन मैथ्स। सो और उस समय मुझे किताबें भी पसंद नहीं थी, यू नो। आई यूज टू हेट बुक्स। मुझे मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि ये किताबें कौन लिखता है, क्यों लिखता है और किसके लिए लिखता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी थिएटर करने के बाद मैं अभी यू नो जब तक मैं कोई नई स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है थिएटर ने, यू नो, किताबों के लिए मेरे लिए लेके आया है। ग्रेट ग्रेट। तो पहली बार आपने ये एक्टिंग का शौक आपको स्टूडेंट्स लाइफ में ही शायद शुरू हो गया था? हाँ मैम, मैं जब स्कूल में थी तो मुझे टीवीज़, फिल्म्स और सीरियल देख के मुझे लगा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन क्लास 12 तक मुझे थिएटर के बारे में पता नहीं था। ओके, ऑलराइट। तो आप मूवीज देखती थी, सीरियल्स देखती थी, ऑलराइट। और घर का माहौल कैसा था, सपोर्ट सिस्टम कैसा था? मैम मेरे घर में पेरेंट्स थे कि फ़ाइन, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में दबाव नहीं था कि नहीं 90% लाना है, 10% ऐसा लाना है, ऐसा कुछ नहीं। ओके फ़ाइन, पढ़ाई कर रहे हो। मेरी फैमिली में पहले जैसे मेरी फैमिली थी जब मैं थिएटर नहीं करती थी कि ओके एक है लड़की को पढ़ाना है, शादी कराना है, अपने जो एक कर्तव्य नियम होते वो मेरे घर में पहले था। वी आर 5 सिस्टर्स, आई एम द 3rd वन और मेरा सबसे बड़ा भैया है। तो हम 5 सिस्टर्स, हम एक साथ ही स्कूल में पढ़े हैं। तो नॉर्मली पढ़ाई ही थी, लेकिन आई एम द ओनली फर्स्ट वन इन माई होम जिसने अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ में जाके थिएटर में इंटरेस्ट दिखाया। घर में किसी ने कभी एक्टिंग किया ही नहीं था? नहीं की। बट लाइक यू नो मैं ये बिलीव करती हूँ, मेरी मम्मी के अंदर वो एक एक्टिंग स्किल है, यू नो। जब मेरे पापा गुस्सा हो जाते, कुछ हो जाते, तो मम्मी क्या करती, पहले खाना खा लेती और फिर पापा आते तो बोलते कि पापा को बोलना मैंने खाना नहीं खाया, शी प्रिटेंड लाइक यू नो मैंने अभी तक खाया नहीं। तो मुझे लगता है वो कुछ चीज़ें मेरी मम्मी के अंदर से मेरे अंदर आया है। अच्छा, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड अगर देर हो रहा है तो पहले खा लेना चाहिए। Why are you wasting your time and energy? Yes, I don't understand that at all. Yeah. Anyways, maybe it is love. You know, we can't say. So किस्मत, हमारे स्टूडेंट्स शायद और भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? Hello ma'am, I am Gaurav from Royal Global University. You graduated in 2015 and within a span of just 2 short years, you received acclaim when the Governor of Assam honored you with an award just last year. So how difficult has it been for you to handle all the success and attention so rapidly, and that too at such a tender age? Yeah, hi Gaurav. Very good question. Yeah, Gaurav, you know मैं अभी अपना मेरा खुद का ग्रुप है विंग्स थिएटर। सो यू नो जब मैंने अपना पहला प्ले किया था हेलन, तब मैंने सोचा नहीं था कि यू नो पीपल विल लव मी सो मच एंड दे विल अप्रिशिएट मी। सो ये पहला प्ले करने के बाद मुझे पता चला कि यू नो व्हेन यू डू गुड quality of work, people will appreciate you and somebody is there, they are watching your work and they will you know appreciate you। and ऐसे अच्छे काम करते करते अपॉर्चुनिटी खुद अपने पास आती है। तो यही 2 साल में मैं यही सोचती हूँ और मैं मानती हूँ कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और हमें खुद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हमें किसी के पास जाना नहीं होगा। एंड लाइक यू नो कोई हमें अच्छे काम में एज सीनियर जूनियर डजेंट मैटर, काम अच्छा है पीपल विल कॉल यू। और अभी मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं बैलेंस करके चल रही हूँ। मैंने एक प्ले के बाद मैं अगर मुझे सेकंड स्टोरी अच्छी लगती है तभी मैं अपना सेकंड प्ले या थर्ड पे रेडी मैं कर रही हूँ। तो इट्स फाइन, आई एम नॉट मीन्स लाइक मुझे बहुत दूर जाना है, मैं काम कर रही हूँ। सो
you know, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं तभी स्टोरीज़ लेती हूँ, पढ़ती हूँ। बहुत सही कहा किस्मत आपने। यू नो हम आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू गौरव फॉर योर क्वेश्चन। और किस्मत, यहाँ आपने अपने ओन वेंचर प्रोडक्शन हाउस विंग्स के बारे में जिक्र किया, तो टेल अस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपना ट्रूप, अपना विंग्स थिएटर ग्रुप क्यों खोला और इसके एम्स क्या हैं? Okay. क्या क्या काम करती हैं आप इसके जी जरिए? मैम, मैं पहले एज एन एक्टर सिगाल में एज एन एक्टर काम करती थी, लेकिन एज एन एक्टर वहाँ रिहर्सल्स में मैं जाती थी, हमारे जो डायरेक्टर थे वो हमें डायरेक्शन देते थे, ऐसा करो वैसा करो, बट यू नो मुझे उस समय लगा था कि यू नो मुझे वो खुशी नहीं हो रही थी, अंदर से वो सुकून नहीं मिल रहा था। सो समथिंग वाज स्ट्राइकिंग इनसाइड में कि मुझे कुछ करना है, मुझे कहना है। एंड लाइक आई टोल्ड यू, सबकी अपनी अपना एक जर्नी होता है, स्ट्रगल होता है, तो वो स्ट्रगल थी मेरे पास। तो मुझे लग रहा था मेरी जितनी भी अंदर की घुटन है वो मुझे बाहर निकालना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्ले डायरेक्शन करूँगी। तो इसीलिए मैंने प्ले डायरेक्शन करने के लिए मैंने अपना ग्रुप फॉर्म किया, उस बैनर के अंडर मैं अपना प्ले करती हूँ और मैं बच्चों के साथ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ वर्कशॉप भी करती हूँ। और बहुत मेरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा यंग आर्टिस्ट है जो अभी अपने कॉलेज पढ़ाई भी कर रहे हैं और जो आके नाटक भी करते हैं। हार्ड वर्क करना पड़ता होगा आपको, काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा। चैलेंजिंग होता है, लेकिन यू नो जब हम यू नो मेरे आर्टिस्ट अपने सेम एज के हैं, सो व्हेन वी वर्क वी हैव फन। या उसमें कुछ ज़्यादा या इवन यू नो वी गो आउट एंड वी परफॉर्म आउट ऑफ असम। इट्स लाइक हमारा कोई वेकेशन है, हम कोई हॉलीडे पे जा रहे हैं। It's like when your passion becomes your work, then work is no more work, right? Yeah, you but enjoy every day yes, at work. ma'am, yeah. Very nice, किस्मत। I think हमारे और भी कुछ students हैं जो पूछना चाहेंगे किस्मत से कुछ। Yes. Hello, ma'am. I'm Chia from Royal Global University. My question for you is, how do you motivate your fellow mates? Hi, Chia. Well, you know, I told Florence ma'am, बहुत यंगस्टर आर्टिस्ट है मेरे ग्रुप में। सो मैंने जैसे अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, मैं खुद लिखती हूँ, तो मैं भी अपने आर्टिस्ट को बोलती हूँ कि यू नो एज एन एक्टर तुम काम मत करो। जब मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, आई आस्क देम हु आर इंटरेस्टेड कम एंड हेल्प मी। सो जिसको राइटिंग में इंटरेस्ट होता है वो मेरे पास आते हैं, लिखते हैं, मुझे स्क्रिप्ट में हेल्प करती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में, सेट डिज़ाइन में। सो मैं उनको कहती हूँ। और बहुत सारे वेरियस स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, लाइक स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट। दे गिव scholarship to those who are doing good in theatre field. So I tell them to apply that. अपना खुद का ग्रुप फॉर्म करो, खुद डायरेक्शन करो। इनफैक्ट किस्मत को भी नेशनल स्कॉलरशिप मिला है थिएटर के लिए। सो यू नो टैलेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कंट्री इफ यू वर्क हार्ड एंड सिंसियरली। अभी किस्मत हमारा टाइम बहुत कम है और हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सो हम चलते चलते आपसे एक रैपिड फायर राउंड ऑफ क्वेश्चन गेम है हमारा, हम आपके साथ खेलना चाहेंगे बिकॉज आवर व्यूअर्स वांट टू नो मोर आंसर्स फ्रॉम यू, यू नो more about you. So are you ready for the game? Yeah. Well, इसके लिए आपको नंबर भी मिलेंगे। Okay. ठीक है? So और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी देने हैं। So किस्मत, your time starts now. Who are your idols in theatre? भागीरथी मैम। Okay. So other than theatre or acting, what else do you like to do? I like traveling. Really? Yes. Great. Great hobby. So what is your philosophy of life? You know, you just produce good quality of work, people will come to you, you don't have to go. Rightly said. What makes you angry? Dishonesty and lie. And any Bollywood hero you would like to go on a date? Yeah, Ranveer Singh. Really? Yeah, I like him too. So what do you love to eat? You know, I'm very foodie. I love to eat, especially non-veg. Non-veg. Yeah. All right, all right. And any funny incident of your life that you would like to share? Yeah, you know, जब मैं I think that was my life's first theatre festival as a director. I was attending that. So when जो receive हमें करने आए थे स्टेशन पे, कहा कि you know when I saw your name I thought that you might be you know of an 80-90 years old lady, but you are less than 20. That was you know funny moment. You found it very funny. Yeah, you are so young, Kismat. So nice to meet Thank you you, actually. ma'am. So what's your greatest fear? Fear, you know, height.
Okay. Yeah, You I'm cannot grow. scared of. Okay, all right. Yeah, all right, all height right. and I can water. understand that. Your dreams, your future plans. Yeah. What are you doing? What are you doing these days? Yeah, ma'am. I'm writing a script of my movie. I have planned to make movies also. Wow. Yeah. Okay. Yeah. So my planning, you know, I'm doing preparation of my third play, which is War Horse, and after that, I will do my work of short film. War Horse. हाँ, कहीं पे मम्मी वम्मी का रोल होगा तो मुझे भी दे देना. Right? Okay. Last but not the least, Kismat, or ये a song that describes you for Okay. our viewers. Okay, but I am very bad singer, but still I'll Yeah, sing. Yeah, just a game. Okay. I think everybody can join me. All right, all right. What is the song? Yeah, it's Jodi Tor Dak Sune Ki Oh Na. wow, lovely song. So are you ready, students? Yeah. Chalo, you Okay. take the read. Okay. Yeah? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে Lovely, Thank well you, ma'am. done, Kismat. You have scored 10 on 10. And thank you for coming to our show. Thank you for giving us time. And God bless you. Keep shining. Thank you, and, ma'am. Keep glowing. Thank you, ma'am. Well, dear viewers, that was the young, talented artist from Assam, the shining star from the world of theatre in Guwahati, Kismat Bano for you. I hope you enjoyed our conversation. Well, we will come back to you with more interesting personalities on this very show. Till then, please take good care of yourselves. For now, this is your host, Flores, saying goodbye to you. Stay healthy and stay inspired.